हेडिंग लिखो मॉलिस टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, मॉलिस टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है। तो जिसके टेस्ट है नाम उसका मतलब मॉलिस MOLISCH, मॉलिस टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, सभी कार्बोहाइड्रेट इसको है ना लिखना। इन दिस 1 or 2 drop of alcoholic solution of 1 or 2 drop of alcoholic solution of alpha naphthol, alcoholic solution of alpha naphthol is added to 2 ml solution of carbohydrate, 2 ml solution of carbohydrate, लिख लिया 2 ml solution of carbohydrate, then after 1 ml concentrated H2SO4, then after 1 ml concentrated H2SO4 is carefully added, then after 1 ml concentrated H2SO4 is carefully added along the side of the test tube, along the side of the test tube, then formation of a violet ring, then formation of a violet ring at the junction of both liquid confirms the presence of Sir, at the junction of के बाद repeat at कर the दो। junction of both liquid confirms the presence of carbohydrate, confirm the presence of carbohydrate, लिख लिया। Yes sir. Yes. Now next heading amino acid, सर 2 लिक्विड कहाँ से डाल दिया हमने? हेडिंग लो अमाइनो एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड डालने हैं बाद में, हाँ ठीक है, 2 ही मेंशन सॉल्यूशन ऑलरेडी था टेस्ट ट्यूब के अंदर। अमाइनो एसिड ब्रैकेट में देना बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के बाद का बड़ा टॉपिक है हाँ ना। जी अब नया टॉपिक है आपका अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में देना बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, लिख लिया। Yes, sir. इसमें लिखना आप लोग फर्स्ट पॉइंट, दे आर कलरलेस crystalline solid with a high melting point, they are colorless crystalline solid with a high melting point, and having sweet taste, soluble in water while insoluble in organic solvent, comma soluble in water while insoluble in organic solvent, inorganic solvent. Next point, insoluble in organic solvent. soluble in water while insoluble in organic solvent. Next point, they are bifunctional, containing both NH2
and COOH group. They are bifunctional, containing both NH2 and COOH group. So they are amphoteric in nature. So they are amphoteric in nature. Next point. They exist, sorry, all amino acid, yeah, all alpha amino acid, all alpha amino acid except glycine, are optical active. All alpha amino acid except glycine are optical active and exist in capital D and capital L form, and exist in capital D and capital L form according to Fisher's projection. According to Fisher's projection. इसी को कंटिन्यू करो. And L form of amino acid and L form of amino acid synthesize protein. Underline करो. L form of amino acid synthesize protein. D form synthesize नहीं करता, only क्या करता है? L form synthesize करता है. L form of amino acid synthesize protein. लिख लिया? Yes, sir. लिखना आप लोग. In nature, next point, around 70 amino acid are present. क्या सर? In nature, around 70 amino acid are present. Among them, 20 forms proteins, while remaining are 20 forms protein, while remaining are non-proteinous acid. While remaining are non-proteinous amino acid. Non-proteinous amino acid. लिख लिया? आपने जहां पर अमाइनो एसिड लिखा वहां पर ये फॉर्मूला लिख देना. इट इज NH2CH इट इज चूंकि इट इज अ काइल कार्बन, दैट्स व्हाई स्टार से शो किया मैंने. इट मस्ट बी क्या होगा आपका ऑप्टिकल एक्टिव. अरे बोलो हाय ना. अब यहाँ पर जो R है दैट इज नॉट अल्काइल. यहाँ पर R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो देखते हैं अपन लोग क्या क्या होगी. इनके बेसिस पे अपन लोग 20 अमाइनो एसिड को पढ़ेंगे. लिख लिया आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर, जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड. एक मिनट. ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है कि COH की अल्फा पोजीशन पर NH2 जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अल्फा अमाइनो एसिड. बीटा अमाइनो एसिड भी होते हैं, गामा भी होते हैं, लेकिन हम मेनली पढ़ रहे हैं अल्फा अमाइनो एसिड. तो लिखना आप लोग, यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग कि NH2 एंड COH का जो रेशियो होता है दैट मे वेरी. यदि आपका सिंगल दिया आपको मॉलिक्यूल, इन दैट केस क्या होगा, दैट बिकम्स एम्फोटेरिक. लिखा है मैंने एम्फोटेरिक. अरे बोलो है ना. यदि COH ज्यादा होगा दैट मस्ट बी एसिडिक, और यदि मैंने बोला NH2 ज्यादा होगा दैट मस्ट बी बेसिक. ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, लिखना आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COH एंड NH2. Classification of amino acid on the basis of number of COH and NH2 group. 3 पॉइंट लिखना है, सिंपल लिख लो विदाउट एनी हेडिंग.
देखना एसिडिक On अल्फा basis of- अमाइनो एसिड Sir, please, on basis of on the basis of number of COH and NH2 group. से पहला लिखना आप लोग, पहला लिखना आप लोग एसिडिक अमाइनो एसिड, मतलब इसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बेसिक ग्रुप। दूसरा क्या होगा, बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड। और तीसरा लिखना आप लोग न्यूट्रल अमाइनो एसिड। जब बोथ ग्रुप आर मस्ट बी क्या होगा, इन सेम क्वांटिटी। अरे बोलो सही है क्या, सही है? हाँ सर। नेक्स्ट फिर से लिखना क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। इससे पहला क्लासिफिकेशन लिखेंगे अपन लोग नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। सर ये 3 होने के बाद क्या करना है? फिर से लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड लिखना नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। कंटिन्यू करके आगे बढ़ो, लिख देना दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दे आर synthesized in our body, they are synthesized in our body। ठीक है, सेकेंड लिखना आप लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड। यहां पर लिख देना 10 है ना, नॉन एसेंशियल में देना 10 अमाइनो एसिड होती है। टोटल कितने होते हैं? 10। They are synthesized in our body। They are synthesized in our body। नेक्स्ट लिखना आप लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड लिखना they do not synthesize in body, they do not synthesize in body, so taken in the form of diet, so taken in the form of diet। चलो आगे बढ़ेंगे भैया। In our body, they are not synthesized in our body, so can be taken through diet, so can be taken through diet। लिख लिया? yes sir। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसमें हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स के पढ़ेंगे। यहाँ पर ये चीज क्या है, इट इज कॉमन फॉर ऑल। इन दैट केस हम से अकेला आर पढ़ेंगे। आर बेसिकली क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या बनाना है, 4 बनाना है। इन दैट केस फर्स्ट कॉलम में लिखा अपन लोगों ने नेम, नेम के बाद में होगा आपका स्ट्रक्चर। सर न्यू पेज से स्टार्ट करें? हाँ जी, टोटल 10 कैटेगरी बनाना आपको, देख लो कितना है। स्पेस छोड़ देना ना, एक लाइन 2-2 लाइन का है ना, थोड़ा ज्यादा ही फैला फैला के लिखना। स्ट्रक्चर आर, दे मस्ट भी क्या होगा आपका इक्वल साइज का और सबसे बड़े साइज के होगा। नेक्स्ट है आपका दैट इज सिंबल, क्योंकि सिंबल बोल रहा हूं। इन दैट केस क्या होगा, दैट मस्ट भी क्या होगा 3 लेटर कोड लिखाऊंगा यहाँ पे। और आखिरी में है सिंगल, वन लेटर कोड। यहाँ पर 1 लेटर लिखूंगा, यहाँ पर 3 लेटर लिखूंगा, बाकी रिमेनिंग पेज जो बचा आपका इन दोनों में इक्वली डिवाइड कर दो। सर नेम बहुत बड़े बड़े रहेंगे क्या? बहुत बड़े बड़े नेम रहेंगे, ज्यादा ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ इनको याद करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि अपन लोग क्या भैया इंजीनियरिंग वाले हैं, तो अपने लिए तो क्या देखो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इस चीज में ना। बायो वाले होते तो ऑब्वियसली बात, तो उनको याद करने में ऑलरेडी याद करके बैठे होंगे वो तो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस जो ही फॉलो किए, कोशिश करना उसी सीक्वेंस को आप फॉलो करें। तो सबसे पहले तो बात करें अपन लोग नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं,
इसके लिए मैंने यहाँ पर सिंबल लिखा है, इट इज GAS C। उसके बाद में हो गया आपका AG देन आफ्टर होगा इट इज T और ये हो गया P। GAS AG TP। अरे बोलो हाय ना। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड को एक प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में अरेंज करते तब जाके बनता प्रोटीन। मतलब इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड लग जाते हैं और इनके स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके बेसिस पे क्या होगा कि वहां पर अलग अलग फंक्शनें होंगी। एज वी नो अबाउट इट कि प्रोटीन्स के बहुत सारे अलग काम होते हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले क्या लिखा भैया, जी स्टैंड फॉर होता है इट इज ग्लाइसिन। क्या बोलेंगे भैया अपन लोग, इट इज ग्लाइसिन। यहाँ पर आर अकेले लिखना अपन लोग को, तो पूरा फॉर्मूला ना लिख के बस आर, मतलब यहाँ पर वैलेंसी क्या होगी एच। क्योंकि यदि मैंने एच यहाँ पर लगा दिया तो एच यहाँ पर लग गया, इट बिकम्स CS2, इट बिकम्स अकाइरल। अरे बोलो है ना, यस सर। अकाइरल होगा। तो ये एक मात्र अमाइनो एसिड है जो कि क्या है आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव। बाकी रिमेनिंग में सभी में क्या होगा आपका RH के अलावा होगा या फिर NH2 एंड COH के अलावा होगा। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग कार्बोहाइड्रेट, मैंने बताया था बस एक ही कार्बोहाइड्रेट जो क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी कीटोनिक, यदि आपको याद होगा। नेक्स्ट मैंने बोला 3 लेटर सिंबल लिखना है, दैट इज GLY और 1 लेटर कोड में आ गया इट इज G। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड नंबर पे, दैट इज एलानिन। क्या बोलते हैं भैया अपन लोग, एलानिन। यहाँ पर R की जगह पर लिखेंगे अपन लोग CH3 या फिर चाहे तो आप लोग ME लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर एलानिन मतलब ALA आएगा और 1 लेटर कोड में आएगा इट इज कैपिटल A। नेक्स्ट नंबर किसका आता है S का, थर्ड नंबर पे आएगा इट इज सेरीन। सेरीन में देखिए बच्चे अपन लोग ये आता है आपका इट इज CH2OH, that is CH2OH। सेरीन में शॉर्ट फॉर्म में आएगा इट इज SER, 1 लेटर कोड में आएगा कैपिटल S। फोर्थ नंबर पे आएगा सेरीन के बाद में दैट इज सिस्टीन। सिस्टीन में यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन है, CH2 यहाँ पर अल्कोहल है तो यहाँ पर होगा आपका थायोल और ये होगा इट इज CYS और ये होगा सिंबल C। कोई दिक्कत बेटा? सर वो सेरीन में HCS होता है हाँ बेटा, सर, सेरीन में SER होता है कि SES होता है सिंबल? SE सॉरी गलत, इट इज SER। नंबर पे आएगा आपका, बोलो। तो ये GASC खत्म हो गया, अब क्या बचा AG। अरे बोलो हाय ना। ये होगा आपका एस्पार्टिक एसिड। थोड़ा सा कंफ्यूजन नाम है एस्पार्टिक एसिड। एक होता है एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज नोन एज विटामिन C और ये एस्पार्टिक एसिड दैट इज अमाइनो एसिड। एस्पार्टिक एसिड में देखिए भैया अपन लोग ये लिख दिया मैंने CH2 और ये लिख दिया मैंने COOH, मतलब एक एसिडिक ग्रुप। एस्पार्टिक एसिड में इट इज ASP आ गया, ASP। क्योंकि A ऑलरेडी आ चुका है, इन दैट केस दोबारा A तो यूज नहीं कर सकता। इन दैट केस यहाँ पर अपन लोग यूज करते हैं B। ये मैं नहीं बना रहा, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही है। नेक्स्ट मैंने बोला 6 नंबर पे आएगा आपका सर G वाला। हाँ जी, स्ट्रक्चर के बीच में बहुत जगह छोड़नी है क्या? आप तो बस ये है कि देखो और एडिशनल मुझे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं हो कि कचरा हो आखिरी में, है थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखना। आप एक लाइन छोड़ दो, दैट इज मोर देन इट, दैट इज ग्लूटामिक एसिड। यार दैट इज ग्लूटामिक एसिड। क्या होगा भैया, ग्लूटामिक एसिड। इसमें कुछ नहीं करना आपको, एक CH2 और बढ़ा दें, इट इज CH2 दो बार हो गया आपका, दैट इज COH। ग्लूटामिक देखिए बच्चे अपन लोग इट इज GL, ये होगा तो सिंबल जो होगा इट इज G आ चुका है ऑलरेडी, इन दैट केस इट इज E। कोई दिक्कत बेटा?
तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड लिख दिया अपन लोगों ने। अब नेक्स्ट नंबर किसका आएगा फिर से? ए का? अरे बोलो हाँ है ना? क्या आपने कुछ बोला क्या अभी? ये बात नहीं नहीं ये चलो तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर क्या हो गया? ए जी। अब नेक्स्ट ए आता है आपका, डेट मस्ट बी क्या होगा? 7th नंबर एस आर्जेन। यहां पर देखिए अपन लोग एस्पार्टिक एसिड में था आपका इट इज CH2 CONH2 सॉरी CaOH और यहां पर आएगा इट इज CONH2। थोड़ा सा डिफरेंस है आपका, ठीक है। यस नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग AS और यहां पर आ गया N, तो सिंबल यहां पर N आएगा क्योंकि तीसरा वाला है जो A से स्टार्ट हो रहा है आपका। नेक्स्ट है आपका 8th नंबर पे G वाला फिर से होगा, दैट इज ग्लूटामिक एसिड होगा। तो ग्लूटामीन भी आपका सिमिलर होगा, इट इज CH2 CONH2 ये होगा Gl देन N। क्या होगा भैया? Gl देन N और सिंबल इसका होता है Q। नंबर 9 पे क्या है? इट इज टी। T। तो T स्टैंड फॉर होता है टायरोसिन स्ट्रक्चर बना लो ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इज पैरा पे लगाया हाइड्रोक्सी और ये लगाया आपका बेंजाइल ग्रुप, इट इज TYR। सिंबल होगा इसका T टायरोसिन, सॉरी TYR है, सॉरी Y होगा टायरोसिन Y। और सबसे आखिरी में आएगा दैट इज 10th नंबर प्रोलिन में देखिए बच्चे अपन लोग कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाता है कि NH की जगह NH2 की जगह NH हो जाएगा और इट बिकम्स अ होल रिंग। इन दैट केस हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे पूरा कंपाउंड ही ड्रॉ करना है। तो ये बस आखिरी ऐसा है कि थोड़ा अलग रहेगा। तो प्रोलिन का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, दैट इज अ 5 मेंबर रिंग इन विच ये लगा दिया मैंने, इट इज NH, देयर इज नो डबल बॉन्ड और ये कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन, इस पर NH2 लगा है, इसी पर लगा है आपका COOH दैट इज अकाइल कार्बन। नाम है इसका प्रो और सिंबल है P। ये अपन लोगों ने नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड लिख लिया, रफ कर दो इसको। नाउ अगेन एक और टेबल बना लो, दैट इज एसेंशियल। कंडीशन आपकी सेम ही है, सब कुछ सेम है, इवन अमाइनो एसिड भी 10 है। अमंग देम 10 अमाइनो एसिड में 8 तो आपके सिंपल है दैट इज एसेंशियल, लेकिन उनमें भी 2 ऐसे हैं जो आधे एसेंशियल है और आधे के हैं आपके नॉन एसेंशियल। मतलब कुछ पार्ट बॉडी के अंदर होता है और कुछ पार्ट रेगुलर डाइट में होता है और टिश्यू में जाके कंबाइन होके एक अमाइनो एसिड बना देता है। तो शुरुआत करते हैं भैया, इसमें कोड लिख लें क्या अपन लोग शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज P LIPTM LP, sorry, it is LT, it is AH। AH थोड़ा अलग चलता है, दैट इज मैंने बोला था सेमी इंडिस्पेंसिबल। मतलब कुछ पार्ट क्या होता है बॉडी के अंदर और कुछ पार्ट क्या होता है बॉडी के बाहर आता है। मतलब
बाहर से लेना पड़ता है। तो बात करें बच्चे अपन लोग, पहला दिया है इट इज वैलीन। वैलीन, वैलीन होता है आपका आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल बताओ कैसा होता है? इट इज Me2CH, दैट इज आइसोप्रोपाइल। याद रखिए यदि वैलीन इट इज VAL, सिंबल होगा इसका कैपिटल V। नेक्स्ट नंबर पे आएगा आपका L, मतलब ल्यूसीन। ल्यूसीन होगा आपका इट इज आइसोब्यूटाइल। फॉर्मूला क्या होता है आइसोब्यूटाइल का? MECH, एक और CH2 लगा दो, दैट बिकम्स आइसोब्यूटाइल। दैट बिकम्स आइसोब्यूटाइल। नेक्स्ट बात करें ल्यूसीन का सिंबल क्या होगा? इट इज LEU, ये हो गया आपका L। नेक्स्ट है AC से कोरिलेटेड, दैट इज आइसोल्यूसीन। आइसोल्यूसीन में क्या होता है? दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो सेकेंडरी ब्यूटाइल का? इट इज 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी बोलना है, इन दैट केस दैट बिकम्स क्या होगा? ET, और लिख दिया मैंने इट इज सेक ब्यूटाइल, दैट इज I, देन ल्यूसीन का L और E, सिंबल होगा इट इज I। नेक्स्ट आता है आपका PTM। PTM, तो P स्टैंड फॉर क्या होगा भैया? दैट इज फिनाइल एलानिन। तो एलानिन पड़ता है इट इज CH3, फिनाइल लगा दो, दैट बिकम्स क्या होगा? इट इज PHCH2। वैसे तो उसको फिनाइल बोलते हैं अपन, सॉरी इसको बेंजाइल बोलते हैं। इट इज फिनाइल एलानिन, ये होगा आपका PHE। फिनाइल शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम, नॉट PF। आगे बढ़े। PTM 6 number, sorry 5 number, that is 3O-nin। 3O-nin, स्पेलिंग गलत हो चुकी है। that is THREONINE, थ्रियोनिन। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, that is MECH, यहां पे लगा दिया OH, MECH, ये हो गया आपका OH, और यहाँ पे थ्रियोनिन इट इज T, देन H, देन R, सिंबल होगा इसका T, थ्रियोनिन। बोलिए भैया, रफ कर दूं क्या? हाँ सर। तो 6 नंबर पे आएगा दैट इज मिथियोनिन। मिथियोनिन, मिथियोनिन में होता है क्या? इट इज Me, देन S, देन CH2, देन CH2। थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं यहाँ के नाम। मिथियोनिन का कोड होगा इट इज MET होगा, और सिंबल होगा कैपिटल M, देन आफ्टर आएगा L, मतलब लाइसीन। लाइसीन में होता है इट इज NH2 CH2, 4 बार फ्री वैलेंसी CH2 की साइड है, 4 बार लिख दो क्या? समझ में आता है? अच्छा अरे बोलो। लाइसीन, इट इज लाइसीन, लिख दोगे सिंबल? यस सर। यस सर। क्या होगा बेटा? इट इज LYS। अब देखो L अपन लोग ले चुके हैं क्या?
हाँ सर। दैट बिकम्स नहीं लिया ये अच्छा ले लिया एल ले लिया सर ले लिया ल्यूसीन लिया में। हाँ सर किस में लिया था अपन ने ल्यूसीन में एल लिया था याद है यस सर चलो नेक्स्ट आता है आपका थोड़े बड़े बड़े स्ट्रक्चर आएंगे इसलिए आखिरी का रफ कर दूं क्या क्या आएगा लाइसीन एट नंबर पे ट्रिप्टोफैन आपको पता है वहां पर टी वाला बोला था मैंने दैट इज टायरोसिन याद है हाँ यस सर। सर दैट शुड कंटेन अ रिंग उसमें बेंजीन होती थी विद OH वाली और यहाँ पे बेंजीन नहीं होती यहाँ पे बेंजीन बस एक चीज और होती है यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ये हो गया ये लोन पेयर हो गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और लगा दे रहा हूँ और यहाँ पे लगा दे रहा हूँ CH2 ट्रिप्टो ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन में क्या करना TRP इट इज TRP सिंबल होता है इसका W नेक्स्ट नंबर दैट इज अर्जिनिन अर्जिनिन अर्जीन इट इज अर्जिनिन अर्जिनिन में एक चीज लिखना इंपॉर्टेंट है दैट इज सेमी इनडिस्पेंसेबल मतलब कुछ पार्ट बॉडी के अंदर और कुछ पार्ट बॉडी के बाहर देखिए लिखा है NH it is NH2 then C double bond NH then NH then CH2 तीन बार that is arginine सही है it is ARG सिंबल होगा it is R एक और बच गया उसको अपन थोड़ा सा ऊपर ही बना लेंगे एनसीईआरटी भगवान ने ये नेक्स्ट एंड आखिरी बच्चा है इट इज हिस्टिडीन हिस्टिडीन क्या होगा भैया सेमी इन डिस्पेंसेबल हिस्टिडीन क्या करो इसमें स्ट्रक्चर पहले मेरा बन जाने देना उसके बाद बनाना NH CH2 कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C it is HIS symbol is H बना लो अपन बड़ा पेपर बनाते हैं 50 क्वेश्चन वाला लिखो अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आर arginine and histidine are semi essential amino acid
सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, arginine and histidine are semi-essential amino acid and they are synthesized in tissue and they are synthesized in tissue. लिखिए अरे बोलो भैया लिख लिया क्या? चलिए Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग इज ज्वीटर आयन, इंपॉर्टेंट है। दो चैप्टर में पढ़ेंगे, एक तो सेम चैप्टर और दूसरा पढ़ेंगे अपन लोग सरफेस में, दैट इज ज्वीटर आयन। सुना है क्या? समझा दूं कि लिखा दूं? दोनों। लिखा है NH2 CHR COOH। तो भैया अमाइनो एसिड बॉडी के अंदर होते हैं, एंड व्हाट अबाउट देयर फिजिकल स्टेट? बोलो क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड होंगे, वाटर में डिसॉल्व करूंगा, वाटर में डिसॉल्व करूंगा, ये लिख दिया मैंने वाटर। तो एक्वा सॉल्यूशन होने के कारण क्या होगा? एसिड पार्ट क्या होगा? H को रिलीज कर देगा और बेसिक पार्ट क्या होगा? H को गेन कर लेगा। इन दैट केस ये बना लेगा H3N पॉजिटिव, ये भी लेना, ये हो गया CH, it is R, then C double bond O negative charge, that is dipolar ion, dipolar से having same amount of charge होगा आपका, it is dipolar ion, also be known as what? क्या बोलेंगे इसको बोल लो? That is ज्वीटर आयन। तो कंडीशन इज व्हाट? ज्वीटर आयन की इट कंटेन सेम अमाउंट ऑफ क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो टोटल चार्ज इट बिकम्स कितना था आपका? न्यूट्रल। टोटल चार्ज बिकम्स क्या होगा आपका? न्यूट्रल। Yes, sir. लिखो आप लोग इसमें इन एक्वा सॉल्यूशन। सर 1 मिनट सर प्लीज। ये लिख रहे हो क्या? हाँ मतलब आपने बोर्ड पे लिखा है तो लिखना है ना। सर वो पता है क्या, मैथ की क्लास में तो हका ही देते मेरे को। नहीं कोई गलत बात नहीं बोली थी, ऐसी तारीफ ही की थी इसमें। इट वाजंट मी जेन्युइनली। लेना लिखना इसमें इन एक्वा सॉल्यूशन अल्फा अमाइनो एसिड, इन एक्वा सॉल्यूशन अल्फा अमाइनो एसिड एग्जिस्ट as a dipolar ion, exist as a dipolar ion, and that is formed by proton exchange from COOH to NH2 group, and that is formed by proton exchange from COOH to NH2 group. Sir, COOH 2 and H2. To NH2 group. Next point. And sorry, so they are called Jeter ion, and it is called Jeter ion, and it is called Jeter ion. Next point. और NH2 ग्रुप के बाद and it is called Jeter ion, and it is called Jeter ion. अगर आप ज्वीटर बोलते तो ऐसा लगता है वो यू है जेड के बाद। ZWI है,
हाँ तो वो ज्विटर होगा ना। ज्वेटर, ज्विटर। ज्वेटर। हाँ। चलो लिख लो बेटा, है ना, तुम है ना मेरी इंग्लिश सुधारोगे ना, तुम्हारी केमिस्ट्री है ना, मैं सुधार दूंगा। नहीं सर, मैं ऐसे ही आपको बस बता रहा था। चलो, नहीं अच्छी बात है ना, मैंने अच्छी बात बोली आपके लिए ना, नहीं चाहता तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी हो। नहीं नहीं, बढ़िया हो। चलो लिखो आप लोग, ज्वेटर आयन is electrical in nature. Deuter ion is Deuter ion is neutral in nature. Deuter ion is neutral in nature. Bracket में देना same positive and negative charge. Deuter ion is neutral in nature. Bracket में क्या लिखोगे? Same positive and negative charge. So adjust, so not migrate towards any electrode, so not migrate towards any electrode under the influence of electric field, under the influence of electric field. लिख लिए? अरे बोलो भैया। Next heading is isoelectric point. Isoelectric point. Isoelectric point एक pH होता है। तो ज्विटर आयन के बाद ना। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये भी आप कोलाइडल सॉल्यूशन में सुनने को आएगा आपको। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि ज्विटर आयन में क्या होता है, चूंकि सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज था, दैट्स व्हाई क्या था, ये कहीं पर भी किसी भी टाइप के इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट नहीं कर रहे थे क्योंकि ये न्यूट्रल थे। क्या होता, यदि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता, यदि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता, इन दैट केस क्या होता कि कैटाइनिक पोर्शन ज्यादा होता है एंड कैटाइन विल माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड। अरे बोलो है ना। यदि मैंने बोला एनाइनिक पार्ट ज्यादा होता है, इन दैट केस क्या होता, एनाइनिक पार्ट यदि ज्यादा होता है, इन दैट केस क्या होता कि मेनली एनाइन ज्यादा होते हो, आयन विल अंडरगोस व्हाट, सॉरी विल गोस टू द एनोड। अरे बोलो हाँ है ना। यस सर। तो लिखना आप लोग, अमाइनो एसिड आर, फर्स्ट पॉइंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में, अमाइनो एसिड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर and depending on the pH of the solution, and depending on the pH of the solution, they can donate or accept proton, and depending on the pH of the solution, they can donate or accept proton. Next point, when an ionized form of amino acid, when an ionized form of amino acid is placed in electric field, is placed in electric field, then it will migrate, when ionized part of amino acid will place in electric field, it will ionize, it will ionize, सर इट विल माइग्रेट बोला था आपने। it will migrate towards opposite charge electrode, it will migrate towards opposite charge electrode। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, प्लेस्ड इन के बाद
opposite charge electrode, sorry, placed in electric field will migrate towards opposite charge electrode. sir. Next heading form लिख देना, on the basis of pH of solution, on the basis of pH of the solution. 3 cases are possible. 3 cases are possible on the basis of pH of the solution. 3 cases are possible. लिख लिया? Case number 1, in acidic solution. In acidic solution. Acidic solution मतलब क्या होगा कि इसमें अपन लोगों ने H प्लस का एडिशन कर दिया. अब न्यूट्रल में यदि H प्लस का एडिशन होगा, इन दैट केस क्या होगा बोलो? It becomes positive charge ion. अरे बोलो है ना? और पॉजिटिव चार्ज आयन कहाँ जाएगा? दैट इज कैटाइन. कैटाइन कहाँ जाता है आपका? टुवर्ड्स कैथोड. अरे बोलो Yes. सही है क्या? Yes, कैथोड नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है? positive. नेगेटिव और पॉजिटिव. चलो ये डिसाइड करते रहना आप लोग. लिखना आप लोग, इन एसिडिक सॉल्यूशन ब्रैकेट में लिख देना आप लोग लो पीएच. लो पीएच पॉजिटिव आयन और कैटाइन माइग्रेट्स टुवर्ड कैथोड. कैटाइन माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड. सर एक बार रिपीट कर दो ना. इन एसिडिक सॉल्यूशन ब्रैकेट में लिखना था लो पीएच कैटाइन माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड. केस नंबर 2, इन बेसिक सॉल्यूशन. इन बेसिक सॉल्यूशन क्या हो गए? हाई पीएच. अरे बोलो, ब्रैकेट में देना हाई पीएच. एनाइन विल माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड. एनाइन विल माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड. लिख लिया? लिख लिया? और तीसरा केस है इन न्यूट्रल सॉल्यूशन. इन न्यूट्रल सॉल्यूशन Precipitate. क्या होगा भैया न्यूट्रल सॉल्यूशन में? ब्रैकेट में देना pH equals to 7. Cannot migrate towards any electrode. Cannot migrate towards any electrode. And adjust in the form of Zwitter ion. And adjust in the form of Zwitter ion. Like लिखा है, it is CO, O negative, it is R. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट Zwitter ion? सही है? सुनो. यस सर. अब यार बात करें बच्चे अपन लोग, लाइक मैंने लिख दिया, पहले तो लिख ही दिया मैंने, इट इज Zwitter ion. जो बाय नेचर क्या होता है? इट इज न्यूट्रल. बाय नेचर न्यूट्रल होता है. अब मैंने इसका ट्रीटमेंट करा दिया विद H पॉजिटिव. इन दैट केस pH मस्ट बी क्या होगा? लेस देन 7. अरे बोलो है ना? दैट इज एसिडिक मीडियम. तो मैंने H प्लस प्रोवाइड किया, वो H इससे जुड़ेगा कि इससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से? ऑक्सीजन. ऑब्वियसली ऑक्सीजन से. इन दैट केस जो हमारे पास में नया आयन बनेगा दैट इज NH3 पॉजिटिव रिटेन है, और ये हो गया CH. इट बिकम्स C डबल बॉन्ड O OH. इट इज R. मैंने लिखा पॉजिटिव चार्ज
पॉजिटिव आयन ऑब्लिक कैटायन कहा जाएगा बोलो? टुवर्ड्स कैथोड। क्या होता यदि मैं इसको OH माइनस प्रोवाइड कर देता? सो pH मस्ट बी ग्रेटर देन कितना होता है आपका? 7, दैट इज बेसिक मीडियम। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेस? क्या करता बेस? टू एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक हाइड्रोजन। चूंकि ये क्या था पहले जब NH2 के फॉर्म में था, B क्या था आपका? बेस था। अब आफ्टर टेकिंग H प्लस आयन इट बिकम्स व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड। बोलो है ना? हाँ सर। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग, ये H प्लस डोनेट कर देगा, ये यहाँ पर क्या होगा? इट इज H2N, देन होगा आपका CH, इट इज C डबल बॉन्ड O, O कैरी नेगेटिव चार्ज, इट इज R, देन आफ्टर ये हो गया आपका इट इज anion, इट इज anion। तो बस माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, ठीक है। तो समझते हैं हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को दोबारा से, जो कि अपन ने अभी तक लिखे ही नहीं इसके बारे में। तो क्या होता है भैया? अमाइनो एसिड किसी भी नेचर का हो सकता है उसमें COH ग्रुप ज्यादा हो, अमाइनो ग्रुप कम हो, इन दैट केस एसिडिक फॉर्म होगा। हो सकता है उसमें अमाइनो ग्रुप ज्यादा हो, COH कम हो, इन दैट केस बेसिक होगा। और हो सकता है दोनों इक्वल क्वांटिटी में हो, दैट मस्ट बी क्या होगा आपका? ज्यूट्राइन। तो ये वाला केस तो आपका नॉर्मल हो गया। अब सोचो यदि उसमें एसिडिक पार्ट था, क्या होगा बेटा? एसिडिक पार्ट है तो क्या होगा आपका? पॉजिटिव चार्ज होल्ड ज्यादा रखेगा। अरे बोलो है ना? तो एसिडिक पार्ट को उसको इतना न्यूट्रलाइज कर दे हम सॉल्यूशन को बाय एडिंग सम अमाउंट ऑफ एसिड, सॉरी बाय एडिंग सम अमाउंट ऑफ बेस। इससे क्या हो जाए कि दैट विल कन्वर्ट इनटू ज्यूटर आयन। तो किसी भी कैटायनिक पार्ट को ज्यूटर आयन में कन्वर्ट करने के लिए या फिर एनायनिक पार्ट को ज्यूटर आयन में कन्वर्ट करने के लिए सॉल्यूशन का जो भी pH चेंज होगा दैट इज रिगार्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। समझा क्या? समझा क्या? आयुष सेवड़े, तुम्हारी डीपी पता नहीं थोड़ी अजीब सी लग रही है मेरे को, क्या है ये? लिखना डेफिनेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। डेफिनेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लिखना, intermediate pH at which amino acid shows no tendency to migrate. Amino acid shows no tendency to migrate towards any one electrode. And स्टार्टिंग exists से स्टार्टिंग intermediate pH at which amino acid has no tendency to migrate towards any one electrode and exists as Zwitter ion in equilibrium when placed in an electric field, and exists in equilibrium when placed in an electric field is called isoelectric point. देखो डेफिनेशन सही है क्या? is called isoelectric point.